and welcome to Shriram's IES. In this video, we are going to discuss one critical topic, that is production linked incentive scheme. Now this topic is not only important for your prelims but also for mains, because UPSC has already asked a question in mains on this scheme. This scheme has been in, in force from 2020 to 2026, and this is one such scheme which actually helped India from becoming net importer of mobile phones to becoming net exporter of mobile phones. India's industrial, growth and industrial production has increased massively. Not only that, but semiconductors and investment in electronic components of production linked incentive scheme have also inflated. Now, once we discuss this scheme, as the ministers have also highlighted this, that India's PLI scheme has at least drawn 96,000 crore rupees of investment. We need to go in detail and discuss the other aspects of this scheme. That is, what are the challenges, what are the initiatives, what are its achievements, what have been its lacunas, and not only that, what way forward should India take when we are discussing the production linked incentive scheme. Not only this scheme. Do you remember that the last video which we released on index of industrial production, we mentioned that there is a serious investment into capital led industry. The capital goods growth has increased massively. Now this is something which is more crucial, because here also the investment is driven towards capital goods only. Therefore, now let's understand why is it in news. First of all, it was news because the electronics component, that is PLI, LESM, large scale electronic manufacturing, has catalyzed approximately 96,000 crore rupees of investment in India. And also the electronics production has increased from 11.32 lakhs to 13.11 lakh crore rupees. Now once this investment has increased within just 2024 to 2025-26, this is just 1 year. It means that the aggregate growth, or I would say the year-on-year growth, is around 16%, 15.8%. That is what sets the scale for this scheme. That is why it is important. And if you talk about the other aspects, the domestic value addition is around 23% of this scheme, which makes it more important. Now, once you encounter any question in your mains about the production linked incentive scheme, you can start with this as an introduction. You can start with this fact as an introduction. Clear? Next, what is this scheme about? This scheme was launched so that we can improvise on incremental production and incremental sales. What does this mean? Incremental sales means if any company, if any firm, if any investment, or I would say any factory which is dealing with the certain sectors, all of these sectors, 14 sectors, any company, any industry which is dealing with these 14 sectors, whether it is food industry, food processing, IT industry, IT hardware, mobile, semiconductors, any of the sectors, if it increases its production by a certain number of goods, by a certain number of sales, if the sales increase, if the goods increase more than the normal which they are doing, then they will be incentivized. Say 10% or 5%, 2% of the sale will be given, or there will be tax rebates, different kind of incentives will be there. Now, instead of subsidizing the investment alone, government is rewarding the companies for actual increase in their production. Now, do you remember the basic definition in GDP or national income accounting when we talk about growth? Growth actually means what? Growth means production. The more we produce, the more we grow. That is why this scheme came into light. Understood? Along with PLI, we have two more schemes. One is PLI for large scale electronics manufacturing, PLI LSEM. This is the scheme which has witnessed 96,000 crore of investment. Due to this scheme, we have witnessed this much of investment. But you need to remember that this too was launched in 2020, and its objective is simple: to transform India into a global hub of
mobile phone manufacturing and electronics export manufacturing. These are the two massive objectives, two main objectives of this scheme. Two, one mobile phone and another electronics manufacturing. Now once we discuss this, you also need to remember that electronic production in India has increased to 13.11 lakh crore rupees in 25-26. There is a gross value, or I would say domestic value addition in electronics manufacturing by 23%. This is something which is important. And ये दो facts याद रखने हैं, as it is याद रखने हैं और मेंस में यूज करने हैं. Clear? 14 सेक्टर्स है, ये 14 सेक्टर्स आपको याद रखने हैं. इसमें IT, हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, I have already discussed it. ठीक है, the most important sector is electronics, mobile phones, IT, hardware. Done. Now remember, objectives of PLI. What are the objectives of PLI? Basically simple. Investment को increase करना, domestic manufacturing को increase करना, imports की dependence को कम करना और exports को बढ़ाना. उसके साथ साथ global value chains. We will discuss integrating global value chains in India. Also promote technological advancement and attract domestic and foreign investment into production linked, I would say, sectors. Clear? Now, what was the impact of this scheme on the India's industry? Remember, India became the world's second largest mobile phone manufacturer from 2014 to 2024. 10-15 साल के अंदर, 10-12 साल के अंदर इंडिया ने इतना ग्रो कर लिया, है ना. Major global companies are now expanding their bases into India and multiple companies are seeing India as a future investment partner. Also, not only this, but also in terms of semiconductors, we have actually 12 projects which are launched, which are actually working. Out of these 12 projects, the investment in semiconductors only is 1.64 lakh crore rupees, and commercial production of 3 projects has already started. Along with this, सेमीकंडक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इज इन दी डिजाइन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्प्ले, कंपाउंड, सेमीकंडक्टर्स, ASOT, ATMP, है ना, सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है. इसके साथ साथ इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इज आल्सो गेटिंग स्ट्रेंथन्ड. That is the part of semiconductors. Now the last thing, why was PLI needed? Because India's manufacturing sector historically since ages has been facing some critical issues. क्या critical issues? हमारे manufacturing sector का share अगर हम GDP में देखें तो बहुत कम था. उसके साथ साथ import dependence बहुत ज़्यादा, weak domestic supply chain, लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, लो स्केल प्रोडक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. इसीलिए वी हैड टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम so that we can attract investment into India, so that we can integrate India into global value chains. What are these value chains? Global value chains. These are international fragmentation of production. कि अगर आप देख रहे हो, ये एक मोबाइल फोन है मेरे हाथ में, है ना, इस मोबाइल फोन का से डिस्प्ले या इसका जो ये फैब्रिकेशन यूनिट है ये कहीं और बन रहा है, जापान में बन रहा है. इसी मोबाइल का सॉफ्टवेयर कहीं और बन रहा है, कहीं और कोड हो रहा है. उसके साथ साथ इसका जो हार्डवेयर के कुछ कंपोनेंट्स है, से फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड से आईसी चिप्स, वो कहीं और बन रही है, अब इन किसी और कंट्री में बन रही है. इस पूरे वैल्यू चेन को, इस पूरे सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करना और इंडिया में वैल्यू चेन्स को लाना और इंडिया में आई वुड से असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों होना, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव. ठीक है. For example, a smartphone which is designed in USA, chips are made in Taiwan, display from South Korea and assembled in India. This is value chain integration. और यही ऑब्जेक्टिव है किसका? हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का. इसके साथ साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, से फॉर एग्जांपल हम टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, APIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हम चाइना से मंगाते थे, 75% डिपेंडेंस चाइना पे थी, उसको कम करना. पेंसिलिन जी, पोटेशियम, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिपेंडेंस को कम करना, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना. मैंने बोला 2014 से लेके अभी तक इंडिया नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन चुका है स्मार्टफोन्स का. हाँ, द स्कीम क्रिएट्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो एंसिलरी इंडस्ट्रीज. कि इसके साथ साथ, इस इंडस्ट्री के साथ साथ, से फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये मोबाइल फोन, अब अगर ये इंडिया में बन रहा है तो इसके साथ साथ इसके अराउंड थोड़ी बहुत और इंडस्ट्रीज भी बनेंगी. से मोबाइल फोन कवर बनाने वाली इंडस्ट्री बनेगी. मोबाइल फोन के साथ साथ जो छोटे छोटे गैजेट्स आते हैं, चाहे वो इसके चार्जर का वायर हो, वायर के ऊपर वायर हो, बहुत सारी चीजें, वो जो ऊपर इसके लगता है ग्लास, उसका हर एक इंडस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी. उसके साथ साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या कोई मोबाइल खराब हो गया, उस खराब मोबाइल को ठीक करने के लिए एंसिलरी इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस.
MSME डेवलपमेंट होगा और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस, बिकॉज व्हेन इंडिया इज सेल्फ रिलायंट, जब इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ ही बन रही है तब हमें ज़्यादा डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है और हम आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। अंडरस्टूड? नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर और आई वुड से बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है टेलीकॉम सेक्टर की, है ना। टेलीकॉम सेक्टर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो इस साल की इकोनॉमिक सर्वे थी उसके हिसाब से हमारा जो एग्रीगेट एनुअल ग्रोथ रेट था दैट हैज बीन 1.5%। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है ये ग्रो कर रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है। However, the imports in the same sector have declined. It means we are developing what? Self-reliance. हाँ, हमारा सक्सेसफुल इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो चुका है टेलीकॉम सेक्टर में, ग्रेटर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ रही है हमारी। मतलब अब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं बट डिपेंडेंस कम हुई है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेक्टर आर डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली। दिस इज वन सच केस स्टडी विच वी कैन मेंशन क्लियरली इन आवर मेंस आंसर्स। और ये लिख लिया तो अब आपके नंबर्स अच्छे आने जरूरी हैं। बट देयर इज प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप देखो, जो मैंने पहले भी हाईलाइट किया था कि ये सेक्टर अभी हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल गुड्स में, है ना। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम ये चीजें करते हैं तो इंडिया का जो चीप लेबर है, जो अनस्किल्ड लेबर है, जो सेमी स्किल्ड लेबर है, उसका यहां पे कोई रोल नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, लिमिटेड एमएसएमई पार्टिसिपेशन। अगर आप यहां पे देखो तो यहां लिखा हुआ है दैट पीएलआई के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में 165 में से 69 मतलब अराउंड हाफ 48% जो एप्लीकेंट्स थे वो एमएसएमईज थे। कितना? 69 आउट ऑफ 169 अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स आर एमएसएमईज। अब मुझे एक चीज बताओ, पूरे इंडिया में क्या बस 69 या 49 या 165 ही एमएसएमईज हैं? तो एमएसएमईज का जो पार्टिसिपेशन है वो कम है, जबकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन एमएसएमईज ओनली। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय एमएसएमईज और दीज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दे प्रोवाइड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय लेबर ओनली। दैट इज वाई दीज आर द चैलेंजेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंप्लाइंस है, जैसे पहले हुआ करता था कि बहुत सारे परमिशंस लेने हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स के पास जाना है, लाइसेंसेस बनवानी है, ये सब चीजें अभी भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के साथ अभी भी है, डिस्पाइट ऑफ डूइंग सो मेनी रिफॉर्म्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ व्हाट शुड वी डू? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फर्स्ट स्ट्रेंथन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, कि इसको इंप्लीमेंट करना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाना है, फास्टर अप्रूवल्स एंड डेडिकेटेड पीएलआई फैसिलिटेशन सेल्स, जहां पे डायरेक्टली कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा उसको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे एक ही जगह पे, उसको बार बार हर एक ऑफिस में नहीं घूमना पड़ेगा। सिंप्लीफाई द कंप्लाइंस, चाहे वो जीएसटी वेरिफिकेशन हो, वो कोई लाइसेंस लेना हो, फसाई से वो कोई लाइसेंस लेना हो, चाहे आईएसआई से वो कोई लाइसेंस कहीं से भी लेना हो, ठीक है, वो सारे लाइसेंसेस एक सिंगल विंडो पे मिल जाने चाहिए। उसके साथ साथ जीएसटी का, कस्टम का जो भी वेरिफिकेशन है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी इजी और सिंप्लीफाइड मैनर में होने चाहिए। एक्सपैंड द एमएसएमई पार्टिसिपेशन, एक्सटेंड द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को एक्सटेंड करो, जो आपके 14 सेक्टर्स है उसके बाद आप उसमें लेदर, अपैरल, केमिकल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारे सेक्टर्स भी ऐड करो पीएलआई स्कीम में, तब जाके लेबर इंटेंसिव जो चीप लेबर इंडिया का है वो वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है ना। प्रमोट द रीजनल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो लिंक मैन्युफैक्चरिंग विद इनोवेशन, क्योंकि ये बस ऐसा नहीं है कि से फॉर एग्जांपल ये माउस बना हुआ है ना, ये इन्वेंट हो चुका है, लैपटॉप बन चुका है ना, ये मोबाइल फोन बन चुका है, नया क्या बना रहे हो? हम तो इसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, इसकी प्रोडक्शन हम इंडिया में कर रहे हैं, अभी तक इसकी प्रोडक्शन बाहर हो रही थी, अब इसकी प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है। नाउ देयर इज समथिंग न्यू विच हैज टू बी डेवलप्ड, नए प्रोडक्ट्स, नई इंडस्ट्रीज, जो फ्यूचर सनराइज इंडस्ट्रीज है वहां इनोवेशन में हेल्प करो। तो इसीलिए आपको जो हमारे पास अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है और रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड है, इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसके साथ? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के साथ। अंडरस्टूड? These are some of the points which you can suggest and which you can mention.
ठीक है, प्रीलिम्स के लिए कुछ 5-6 पॉइंटर्स हैं जो पूछे जा सकते हैं एज इट इज एग्जाम में, बट मेंस के लिए रिमेंबर एंड राइट डाउन द क्वेश्चन. फर्स्ट इज द PLI scheme has emerged as the major instrument of India's industrial policy. ठीक है, इट हैज बीन एज वी विटनेस, हमने स्टार्ट से ही यही बोला. दूसरा, क्रिटिकली एग्जामाइन इट्स अचीवमेंट्स भी हमने लिख ली. लिमिटेशंस, इसकी प्रॉब्लम्स कहां कहां पे, चैलेंजेस क्या है. इन प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ एंड आत्मनिर्भर भारत. रिमेंबर, इस क्वेश्चन को आंसर करना है एज इट इज, इसी फ्लो में जिस फ्लो में पीपीटी बनी हुई है, जिस फ्लो में हमने ये पढ़ा पिछले 15 मिनट में. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द PLI scheme contribute to India's integration into global value chains. रिमेंबर, ग्लोबल वैल्यू चेन्स के बारे में हमने पढ़ा. डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. बस ये क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं दोनों. जब आप अटेम्प्ट करें तो आप ये क्वेश्चन सीधा फॉरवर्ड कर सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं. आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है, इधर इस ईमेल पे या फिर इस नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे. मैं आपका क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपके साथ इवैल्यूएट करके दूंगा, और उसके साथ साथ अगर कोई भी कमी पेशी रहती है आपके क्वेश्चन में तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे. With this, I will conclude this session. I thank you all for being here. I wish you all the best. Jai Hind.